Hi everyone, welcome all of you to this class. Myself Amrish Misra and I am from Odisha from a tribal district known as Koraput. I have completed my education from Odisha, Brahmpur University. I have completed MPhil uh, in botany and B.Ed in biological science. Okay, at present I am working as a lecturer in botany. Okay, I have been working in this profession as more than 10 plus years. Okay, so this is all about me. Okay, that is the my name is Amrish Misra and I am from Odisha. My qualification is MPhil B.Ed. Okay, so this is about me. So today we will discuss a topic regarding subject botany. Subject botany topic. So let us assume if you required a glass of water, what you will do? Okay, whether you yourself self-service take some glass of water, one glass of water, or ask your family member for a glass of water. Like that, assume what plant will do. Okay, plant also requires water. For what purpose? For its photosynthesis. Plant also requires water for photosynthesis and for the production of food. Production of food, which is highly necessary. And from where plant it gets? From the soil. Okay, clear? So this conduction of water, known as a technical term known as, that is the ascent of Siap. So friends, today's topic is ascent of Siap. Clear? Today's topic, ascent of Siap. Okay, what is the meaning of ascent of Siap? It is just simple. Only the name is Bhari Bharkam type, but the meaning is very simple. There is the conduction of water from the bottom to the top of the plant. That is known as ascent of Siap. Okay, then come to the point. What is ascent of Siap? It is nothing but the conduction of water from bottom to the top of the plant. Clear? It is known as ascent of Siap. Let us do a diagram, small diagram of plant. I hope red color visible to all of you. Let us assume this is a plant. This is the bottom part. This is the bottom part where root present, and at the top part what is present? That is the leaf, or it can be written as leaves. This is the top part. So this conduction from bottom part to top part through some vessels is known as ascent of Siap. Okay, through these vessels is known as ascent of Siap. Okay, चलो, तो इतना तो सबको समझ आ गया होगा. ओके, मीनिंग क्या है पहले एसेंट ऑफ Siap? जब भी बच्चे इसका नाम सुनते हैं ना, एसेंट ऑफ Siap, वो डर जाते हैं, पता नहीं क्या है Siap का. चलो, इसके बारे में हम आज डिटेल देखेंगे. क्या होता है ये एसेंट ऑफ Siap, किस बला का नाम है ये जो एसेंट ऑफ Siap हमने लिख दिया है. ओके, देन some studies says in ascent of Siap there is the rate of ascent of Siap. Rate of ascent of Siap is 75 centimeter per minute in gymnosperm. Some study says rate of ascent of Siap
sorry, it's angiosperm, not the gymnosperm, sorry, it's angiosperm, and 10 centimeter per minute, that is the gymnosperm. why ये भेदभाव क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आप सब देखे होंगे टॉलेस प्लांट्स हैं इनमें, एंड इसमें जो रूट प्रेशर आता है जो कि कंप्लीटली जीरो है, ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल पॉइंट. ओके, so that's why it is 10 centimeter per minute. Okay, for this ascent of Sharp, there are important two theories are there. One is vital force theory, and another one is physical force theory. One is vital force theory and another one is physical force theory. Vital force theory is completely based on the assumption. Okay, there is no definite any scientifically proven, okay, that this type of systems are taken inside the plant. Clear? ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है जिसमें कि हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीटली ठीक है. ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी फेल्यूर हो गया, इसीलिए उसके बाद और एक थ्योरी आया जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसमें क्लियरली प्रैक्टिकली बोल सकते हैं और साइंटिफिकली क्या है प्रूवन हुआ है. किस लिए फिजिकल फोर्स थ्योरी प्रूवन हुआ है वो सब हम अभी देखेंगे. तो फर्स्ट आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट है जिन लोगों ने ये सब थ्योरी दिया है. पहले अगर हम देखेंगे वेस्टरमेयर थ्योरी, देन सेकेंड गॉड-लुईस की थ्योरी. ओके, गॉड-लुईस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें और एक चीज पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, पंप थ्योरी किसने दिया था? दैट इज द गॉड-लुईस की थ्योरी. क्लियर? ओके, तो जो वेस्टमेयर थ्योरी था इसने क्या बोला था, जो पेरेनकाइमा सेल है, व्हाट इज पेरेनकाइमा? पेरेनकाइमा इज नथिंग बट द सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, ये टिश्यू चैप्टर में है. पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सब टिश्यू का पार्ट है. ओके, तो उन्होंने क्या बोला था, जो वेस्टमेयर साइंटिस्ट है उन्होंने बोला था जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, एसेंट ऑफ शार्प, कंडक्शन ऑफ वाटर is basically done by parenchyma. Clear? Is basically done by parenchyma, and vessels works as reservoir. Clear? Vessels works as reservoir. But जब भी हम देखेंगे parenchyma कैसे कंडक्ट कर सकता है, is it possible? क्योंकि बचपन से हम एक ही चीज तो पढ़ते आए हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर इज कैरिड by there is the xylem. Okay, xylem is the boss for the conduction of water. Clear? तो यहाँ तो ये रॉन्ग हो गया, कोई इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है. गॉड-लुईस की नेक्स्ट आ जाए. गॉड-लुईस की में क्या हुई, पंप थ्योरी. इसने क्या बोला, एक पंप थ्योरी जैसे हमारा पल्सेशन होता है उसी टाइप का एक पंप होता है इनसाइड द प्लांट. कैसे पंप होता है, रूट एक प्रेशर क्रिएट कर देता है जो कि एक पंप उसके अंदर आ जाता है जिससे कि ऊपर तक क्या होता है, वाटर चला जाता है. ठीक है, ये मैकेनिज्म था पंप थ्योरी का. बट इसका भी कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था और इसको जानसे ने क्या किया था, सपोर्ट भी किया था. ओके, नहीं ऐसा होता है, हमने इसको देखा है, ऐसे होता है, बोले थे कौन, हमारा जानसन. ओके, दिस थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक थ्योरी. ओके, like osmosis, this type of conduction takes place. Okay, this is all about the गॉड-लुईस की theory. Clear? Okay, so now move on to the physical force theory because both are baseless. Okay, कोई practically proof भी नहीं हुआ है. Okay, कैसे हुआ, कंडक्शन हुआ कि नहीं, ये सब इसमें प्रूफ नहीं हो पाया. बच्चे लोग
आई होप सो सबको अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाना। ओके, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं अभी क्या, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल थ्योरी 3 पार्ट में आता है। वन इज रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। नेक्स्ट वन इज capillary theory, and the third one is, let's say, it's transpiration pull theory, transpiration pull theory। क्लियर? ओके, जो कि आसान हो जाएगा समझने में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो ये है रूट प्रेशर थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी मीनिंग क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हियर इफ यू सी, दिस इज द रूट पार्ट, एंड रूट पार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वाटर रिजर्वर। Clear? Directly connected with the water reservoir. So here root creates some kind of suction pressure to the reservoir and supply that water to the upper part of the plant. Clear? तो इसमें क्या करता है, रूट एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में, जो कि वाटर रिजर्वर होता है, और वो सक्शन करके ऊपर तक पहुंचा देता है। ये क्या था, पहले हमारे साइंटिस्ट लोगों का यही थॉट था। ओके, तो इसको ये प्रेशर थ्योरी किसने दिया था, प्रिस्टले नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द प्रिस्टले। ओके, एंड इफ यू आस्क रूट प्रेशर वाज गिवन बाय whom, रूट प्रेशर वाज गिवन बाय स्टीफन हल्स। स्टीफन हल्स, ओके, फादर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? तो स्टीफन हेल्स ने क्या किया था, रूट प्रेशर टर्म दिया था, एंड रूट प्रेशर थ्योरी किसने दिया था, प्रिस्टले ने दिया था। तो बेसिकली उन लोगों का बताने का मतलब क्या था, जो रिजर्व वाटर रिजर्वर है जहां पे कि रूट प्रेजेंट है, तो रूट क्या करता है, सम काइंड ऑफ सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, जिससे कि वाटर अंदर से ऊपर तक चला जाता है। ये किसका थॉट था, प्रिस्टले का थॉट था। बट it sounds like 100% right, no problem in that theory, but when it practically experimented, the root pressure in a normal condition, root pressure in a normal condition is just 1 to 2 atmosphere. ओके, रूट प्रेशर में इतना प्रेशर भी नहीं होता कि बॉटम से टॉप तक वो पहुंचा दे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रूट तो इतना छोटा छोटा होता है, उसके अंदर जितना प्रेशर होगा बॉटम से टॉप तक चला जाएगा। कभी थोड़ा सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जब इसको लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया, वहां पे भी नहीं हुआ। ओके, दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज अ कंप्लीटली डाउटफुल। क्लियर? फर्स्ट थिंग। Second thing, root pressure theory creates in a higher amount in the spring season, but in the summer season it is very much low. It is very much low. अभी एक चीज सोचिए, प्लांट को ज्यादातर वाटर कब उसको जरूरत होगा, समर सीजन में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में ज्यादा चला जाए, निकल गया होगा। ओके, तो इन द टाइम ऑफ समर, ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेस थ्रू द लीव्स, ओके, इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो जब उसको ज्यादा जरूरत है तभी तो ज्यादा वो वाटर लेगा ना, कहाँ से लेगा वो, रूट से ही लेगा। यस और नो? बट उसी टाइम पे क्या होता है, रूट का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसी वजह से वाटर क्या नहीं हो पाता, ज्यादातर ऊपर नहीं जा पाता। ओके, बट इन द समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, द रूट प्रेशर इज हाई। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ तो लग रहा है। ओके, सम काइंड ऑफ माल फंक्शन टाइप। क्लियर? ओके, तो इसमें तो प्रूफ हो रहा है
रूट प्रेशर तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि बॉटम से टॉप तक चला जाए, पहली बात। देन जिम्नोस्पर्म, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिम्नोस्पर्म जिसमें कि 10 cm पर मिनट इसमें ऐसे कंडक्शन हो रहा है, बट रूट जिम्नोस्पर्म में हमने एक चीज देखा, हियर इज नेग्लिजिबल ऑफ रूट प्रेशर, नेग्लिजिबल, negligible. So how the tallest plants are getting water at the time of requirement, it is also a question mark. Getting my point, friends? Okay, so due to this drawbacks, root pressure theory completely fails. Okay, completely fails to explain what actual the phenomena is. Clear? So after that, another scientist, सबको रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो चलो, रूट प्रेशर थ्योरी में एक चीज अगर हम लोगों के बारे में अगर सोचे तो देखिए क्या होता है रूट प्रेशर थ्योरी। जब आपको ज्यादा भूख लग रहा है, ओके, तब हम आपको क्या करेंगे, जस्ट 1 स्पून ऑफ जो भी आप खाते हैं वो आपको देंगे। इट मे बी राइस और 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड और 1 स्लाइस ऑफ रोटी, चपाती, व्हाट एवर यू वांट। ओके, तो क्या होगा, आपका भूख मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा ना। वही हालत है यहाँ पे रूट प्रेशर पे। ओके, जब उसको ज्यादा जरूरत है, समर में जब ज्यादा जरूरत है, उसी टाइम में ही रूट प्रेशर क्या है, बहुत कम है। ओके, स्प्रिंग में रूट प्रेशर ज्यादा है। क्लियर? तो इसका कोई डिटेल्ड हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट, दैट इज द कैपिलरी थ्योरी। Capillary theory. This theory was proposed by Bohm. Okay, तो कैपिलरी थ्योरी ये भी एक फेल्यूर थ्योरी है। ओके, एंड बहुत इजीली यहाँ पे एक चीज क्या किया इन लोगों ने बचपन से एक ही चीज पढ़ के आए थे, दैट इज क्या, दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस बाय जाइलम। ठीक है, इतना इनको मालूम है। हाँ ठीक है, जाइलम ही कंडक्शन करता है। जाइलम इज द ओनली फेनोमेना हु हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। ओके, चलो मान लेते हैं ये भी। तो इन लोगों ने क्या बोला, तो ओनली जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर। सही भी है, जाइलम क्या करता होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये भी सही है, क्योंकि बॉटम से टॉप तक जाइलम ही है। बट जब हम जाइलम का एनाटॉमी करके देखें, जाइलम इज नॉट इन द कंटिन्यूअस मैनर। ये एक प्रॉब्लम है। जाइलम क्या नहीं है, एक कंटिन्यूअस मैनर नहीं है, पहली बात। सेकेंड बात क्या है, इसका जो ल्यूमेन है दैट इज नॉट द यूनिफॉर्म इन मैनर। यूनिफॉर्म मैनर मींस क्या, अगर ये जाइलम का पाइप है तो कहीं कहीं क्या होगा, ज्यादा स्पेस होगा, और कहीं कहीं क्या होगा, ज्यादा स्पेस नहीं होगा। अगर आप लोग अपने घर में पाइप से बाइक या साइकिल या कार को साफ कर रहे होंगे, तो उस पाइप को जब आप प्रेस करते हैं, देखते हैं वाटर बहुत स्पीड से आता होगा, फोर्सफुली आता होगा। जब आप लोग छोड़ देते हैं तो वाटर स्लोली आता होगा। ओके, सेम फेनोमेना यहाँ ही होगा। जब ऐसे स्लो स्पीड होगा तो क्या इजीली ये बॉटम से टॉप तक जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स ठीक ही नहीं रहेगा। ओके, देन ये कंटिन्यूअस नहीं है, पार्ट जिगजैग वे में ये जाएगा। तो वाटर कैसे जाएगा, जिगजैग वे में जाएगा। ओके, जब ये जिगजैग वे में जाएगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर कभी आ नहीं सकता, पहली बात। सेकेंड बात क्या है, जब आप यहाँ पे देखिए, जाइलम नो डाउट रूट तक है, बट जाइलम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर तो नहीं है ना। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड द जाइलम। ओके, देयर इज नो कॉन्टैक्ट। सो हाउ कैन जाइलम टेक द वाटर एंड सप्लाई टू द प्लांट? इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सो ड्यू टू दिस, capillary theory also fails to explain the what actual the phenomena is. So now move on to the important part, that is the cohesion tension theory or transpiration pull theory. This is the actual one, transpiration pull theory, or it is also known as cohesion tension theory. क्या है इसका मीनिंग?
देखिए, एक सिंपल सी वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कोहेशन टेंशन थ्योरी या फिर दिस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। आप सबने कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक्स तो पिया होगा, वो जो बोतल वाला कोल्ड ड्रिंक्स है, सभी ने। मैं एक बोतल में एक स्ट्रॉ वाला बोल रहा हूँ, दो स्ट्रॉ वाला नहीं। ओके, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो वो जो कैन होता है, कैन तो नहीं, वो जो कांच का बोतल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ डाल के क्या करते हैं, पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या करते हैं, माउथ एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। माउथ किस पे प्रेशर क्रिएट करता है, पाइप पे। वो पाइप किस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जहां पे रिजर्वर है। ओके, सेम। ओके, देखते हैं यहां पे, ये हो गया प्लांट। वाटर किसको चाहिए, लीफ को चाहिए। लीफ किसको ऑर्डर देगा, जाइलम को ऑर्डर देगा। जाइलम क्या करेगा, किसको ऑर्डर देगा, रूट पे ऑर्डर देगा। रूट कहां से लेगा, रिजर्वर से लेगा। दिस इज ऑल अबाउट ए कलेक्टिव वर्क। ओके, जाइलम क्या करता है, रूट पे प्रेशर देगा, रूट से वो लेगा। जैसे हम कुआं से पानी निकालते हैं, जैसे नीचे से ऊपर, लाइक दैट। ओके, लीफ क्या करता है, प्रेशर देता है जाइलम के ऊपर। जाइलम प्रेशर कहां पे देता है, रूट के ऊपर। रूट कहां से वाटर लेगा, सराउंडिंग द रिजर्वर। क्लियर, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बिकॉज द लीफ ट्रांसपाइप द वाटर. Clear, leaf creates pressure upon the xylem and xylem creates pressure upon the root, and root take water from the water reservoir. Okay, this is all about the transpiration pull theory. So why it is known as cohesion tension theory? This is the xylem part. In the xylem tube, water molecule moves by the help of the wall of the xylem. Okay, by the हेल्प ऑफ द वॉल ऑफ द जाइलम। ऐसे ऐसे क्लाइंब करते करते वाटर ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऊपर से, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो जरूरी हो जाएगा ही। ठीक है, तो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, माउथ से हम सक करते हैं, वो पाइप से कोल्ड ड्रिंक्स किया जाता है, अंदर जाता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है। कोहेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जाइलम के वॉल के साथ वो लग के ऊपर जाता है। टेंशन फोर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ऊपर से एक टेंशन फोर्स बा ट्रांसपिरेशन फोर्स या पुलिंग फोर्स इज क्रिएटिंग फ्रॉम बाय द लीफ। ओके, बाय दिस मैकेनिज्म वाटर कंडक्ट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्लांट. So till now we have only this theory and it has also many drawbacks. Okay, but we don't discuss today about that drawbacks. Okay, one thing I forgot. Transpiration theory was given by Dickson and Joly, two scientists. After some years it is also some modifications was taken place, and this theory also known as Dickson theory. So clear, my friends? I hope all of you have completely cleared the data of the root pressure theory, cohesion theory and transpiration pull theory. A small recap: root pressure theory given by Priestley and root pressure given by Stephen Halls, father of plant physiology. And another scientist, his name is J.C. Bose, father of Indian plant physiology. Stephen Halls, father of plant physiology. Clear? Then capillary theory given by Bohm, okay, where xylem is the main hero, and at the last, that is the transpiration pull theory or cohesion tension theory. By that process, a collective work, leaf order to the xylem and xylem order to the root, and root taken water from the water reservoir. I hope so all of you have a great time with me. Okay, thank you for this, your patience for the class, and thank you.